प्रॉपर फंक्शन तो थोड़ा आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कमेटी, अगर आप मैं आज से 1987 में चला जाऊँ या 85 में, उस वक्त ईपीसी में 12 क्लब होते थे, मगर 12 क्लब के ऊपर हमारी 7 या 8 मेंबर्स की कमेटी होती थी। तो अभी माशाल्लाह हमारे पास मोर देन 60 क्लब हैं और हमारी कमेटी में मेंबर जो हैं इस वक्त, जो परमानेंट मेंबर है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, वो 5 हैं। तो माशाल्लाह क्रिकेट आपको बड़ी अच्छी खिला रहे हैं, काम करेंगे। तो उसके लिए मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमेटी ने वो रिजिग्नेशन एक्सेप्ट भी किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह ही, क्योंकि मेरा जी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ 1987 से साथ खड़ा हुआ है। और मैंने इसलिए इनको कहा कि अगर जो देखें जो फिज़िकल काम है, अगर अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर ग्राउंड की, मगर इम्तियाज़ को अगर मैंने कहा दिन है ईपीसीए के लिए, तो दिन है ना या रात है, हर वक्त 24 आवर्स है। थैंक यू। और most welcome to another new season of EPCA. It's called 2024, but it is not 2024, it is a 2025 also, because this season will be continue up to the next December 2025. So we are welcoming to all the clubs, and let's we start with our presentation. As you see, this is the annual general meeting. It is not a captain's general meeting. It is an annual general meeting where we are deciding the EXCOM, where we are deciding what is the format will be played, what the new rules have to be implemented. All will be decided by today itself. So whoever, whatever the club, your all suggestion and concern are most welcome on the floor. So let's see the new para. It's the 44th year of the EPCA. And we are attached with the Saudi Cricket Federation. We are very much thankful to Saudi Cricket Federation. As we know, the cricket has been changed a lot in last 44 years. What we are playing, it is completely, it's you cannot say कि अब यहाँ से हम पहले यहाँ थे, अब टोटली हाई क्लाइंब कर चुके हैं, और उसका सबूत हमारा लास्ट ईयर के टूर्नामेंट से पूरी तरीके से मिलता है. सो Saudi cricket also looking for the new youngsters, and we also appreciate कि उस टेक्निकल कमेटी जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के अंदर जो टेक्निकल कमेटी है, उसको लीड हमारे फरद भाई खुद कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब. Not only the Farhad bhai, EPCA is the only association whose all 4 members are in Saudi Cricket Federation committee, including Mudassar Farooqi, then Mr. Abul Hassan, and one gentleman sitting in the behind, Saurabh. Moving part, the Saudi Cricket Federation undercoming the ACC and ICC. What we are playing today, this, your marks, your stats, taking the player to this level. So we have to achieve something. Be remember, this is not just a game. You have to maintain your dignity and EPC also. What we are today, I think last year I shows you, we were crossed 50 plus, and Alhamdulillah, this season we are crossing 60 plus. The clubs, you are the guys.
And these are the new, this is the old 50 clubs, 50 plus clubs. The new, we welcome all the new 10 new clubs has been introduced by this year by the EPCA. We will go with the 4 division. Still, we have to decide the format, but the division will be as it is: Premier, Prime, Super, and Star. If anybody have the suggestion, please, for the division wise also, you can come forward. And this is the always on behalf of EPCA committee. It gives us the great pleasure to welcome you in 2024-25. Let's start kickoff meeting. With a lot of thanks, to our sponsors. The main 3 decades, it's not an easy 3 decades. It's only the one sponsor, Al Turki. Then we have so many sponsors: Stancon, Expertise, Global, Kanu, and the facilities what we are getting today. The startup has been done from the Nizambai in the KFMC. Then it's come Mr. Ovesh Sheikh for the Kanu. And last, but still we have to get through Mr. Ashfaq Khan for the Tamimi Sisi and the Dilawar and Mubashir. Also, we are totally focusing on the youth cricket. For this, from this year, we find us one gentleman who come forward and ask, we have the inter-school from the EPCA, not from the SSCF, and he is none other than Zoeb Shah. Mr. Rami Al Turki, we are very much grateful, thankful to him, who always supporting without any hesitation, without any asking the help, with the very handsome amount, which is supporting for the EPCA. And we are thankful to him. But from the Al Turki, there is another person who always stood with the EPCA, who always give his feedback. Today, unfortunately, he is still not yet come because still he is in office, and he is Mr. Rooney. Later on, moving forward, anybody knows? Yes, Mr. Mishal bin Al Saud, who is leading Saudi Cricket Federation, and very soon we will have another good news from him also, inshallah. And these are the committee who worked for you last 3 years, as Mr. Farhad Mahmood has says, without any single penny benefit. We are here to serve you, not to get a criticize. Definitely, criticize is good for the health, good for the work, but not always in a joke apart. So, every time joking with some guys, try to avoid it. If you are saying in the personal window, I'm not a joking, I'm just kidding, it's not, because the thousand of the person and your cricket fraternity guys are involved at that. So before you're commenting, please brief your comment. Yeah, definitely, we are most welcoming everybody. Definitely we are having a mistakes. Definitely we are doing something wrong. But come forward and explain it. But criticizing on the another joking way, not acceptable. So, as you know, the position is handling by Chairman Mr. Abdul Aziz Naimi. Then President was handling by Mr. Farhad Mahmood. Then we have our advisor who look for the all technical aspects, Mr. Abul Hassan.
GS by myself for you. Then umpiring, a worst job in the committee, the very worst, as the umpiring to assign, because we don't know, we are just assigning the umpire, we don't know what umpire is doing the mistake over there. How you can claim the guy, please send your correct umpire? You are the one who will provide a umpire, not we are the one. So please, let's moving on. Another guy, another gentleman, forever time, he is ready. Mr. Mudassar Farooqi. For the development, he is trying his best, but the way we need your support, he need also your support. And the last but not least, the whole structure of the cricket club is none other than Mr. Saad. Moving forward again, these two guys, two gentlemen, Mr. Saurabh and Rizwan Qayyum, are here to help you guys to bring your kids, let them to train them. I think some of the guys are utilizing their service. So both two guys have played for international cricket and they have a vast experience of the coaching also. After this, then there is another, we can call them as a subcommittee, we can call them without benefit, looking for the EPCA betterment, where we are changing the media. These are the gentlemen, Mr. Sharafat for the stats, Mr. Adnan for the stats, Mr. Umair Ashraf, again he is on the duty here, Mr. Amir Shabir also there, and we have one new gentleman here from this year, Mr. Kavish, and Naseem, and Hamza. So these gentlemen who take the lead from since last 3 years with the EPCA and where we are today. New structure with these people. The chairman will be Mr. Abdulaziz Al Naimi. Do you agree with the president and CEO post, Mr. Farhad Mahmood? Anybody have the objection? Anybody want to replace him? Anybody? So this is for the another 3 years. Be remember. Anybody? Thank you. Look forward, Jazakallah Khair for a wonderful season. I think it has been one of the most different. जब से हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बचपन से खेल रहा हूँ यहाँ पे, और काफ़ी चेंजेस आप लोगों ने देखे हैं, जिसमें हमारे 3 मेजर ग्राउंड्स KFMC, कानो, इंटरव्यू में हैं. तो सबसे पहले लोग ये तालियां बजाएं. बहुत बहुत बढ़िया. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for supporting EPC. फिर उसके बाद टीम्स के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बगैर आप लोगों के ये एसोसिएशन कुछ नहीं. आगे चलते हैं. जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल ज़रा विजिबल ना हो और जो हमारी डिसिप्लिन को मेंटेन करें. कुछ मामला हो जाते हैं ग्राउंड्स पे जिसको सीनियर्स हैंडल कर सकते हैं, और हम लोगों ने 2 नाम नॉमिनेट किए थे. उन 2 नामों को मैं अभी कहता हूँ. पहला नाम है अशफाक साहब, जो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी में होंगे इंशाल्लाह. दूसरा नाम है उस्मान गनी भाई, जो बहुत पहले से हमारे साथ रहे हैं. सही है. तो मेरे ख्याल से आप लोग सब इससे एग्री करते हैं. उस्मान गनी जी, उस्मान गनी. दोबारा आप लोगों ने मौका दिया आप सबकी खिदमत करने का. फर्स्ट ये कि अभी लास्ट टाइम हम लोग को एक प्रोग्राम मिला था सऊदी क्रिकेट फेडरेशन की तरफ से कि जितने भी अंपायर्स आपके जो मैच कंडक्ट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए. पहले वो एलिमेंट्री कोर्स करेंगे, उसी के साथ जब वो लेवल 1 तो फिर लेवल 2 के लिए. तो
उसके लिए तमाम क्लबों को रियाज भाई की तरफ से ईमेल्स वगैरह की थी, लेकिन किसी भी क्लब का कोई उसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ 2 या 3 क्लब के अलावा। और वो भी उन लोगों के रिप्लाई आए हैं कि जो मैच कंडक्ट नहीं करेंगे ग्राउंड के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अंपायरिंग का मेयार इस सीज़न में मज़ीद बेहतर हो और हम उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने अंपायर्स को एटलीस्ट वो कोर्स जो कि ऑनलाइन कोर्स है वो अगर करवा सकते हैं तो वो करवा। उस कोर्स से होगा ये कि वो कोर्स करने के बाद जब हम फिज़िकली उनकी क्लास लेंगे और कहीं पर भी हम जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी और उन अंपायर्स को। और इसी में मैं आप लोगों को एडिशन करते चलूँ कि शाहिद ने जो बोले हैं कि ऑनलाइन कोर्स, अब SSCF की तरह मेल के अंदर वाला वेरी क्लियरली मेंशन है कि अगर अंपायर लेवल 1 नहीं है ही कैन नॉट कंडक्ट द मैच ऑल्सो। लेकिन अभी हमने उसको फोर्सफुली हमारे APC में नहीं कर रहे, तो इसके लिए प्लीज़ शाहिद भाई की ये बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बार में शिकायत करने के लिए आप ही लोग आते हैं, कोई दूसरी वजह नहीं होती है। बहरहाल इंशाल्लाह जो हमारे नए क्लब आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट से आप एंजॉय करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो अभी जो अंपायरिंग का भी आया है, जो स्पेशली एक क्वेश्चन कामरान भाई का भी था, और वही क्वेश्चन अभी और भी बातें हैं मेरी आपसे करने वाली, मैं उसी से, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। इस मैटर को, ये बातें पिछले कई सालों से मैं सुनता हूँ। जब फिर अपनी कमेटी की मीटिंग में बैठता हूँ, मैं शाहिद साहब के साथ भी लास्ट ईयर में यही डिस्कशन, मैंने कहा था यार ये जो आप EPCA को 2000 रियाल अंपायरों की सिक्योरिटी के देते हो, मैंने उनसे भी कहा था कि इसको ख़त्म कर दें, क्लबों को खुद हैंडल करने दें, क्लब खुद दें। क्योंकि वो बात होती है ना कि जिस जगह भी आती है EPCA 2000 उसके ले लीजिए, और ग्राउंड के 750 रियाल, पूरा सीज़न में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आपके ग्राउंड रोल होते हैं। अगर मैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा, आज हमारे यहाँ शेख साहब बैठे हुए हैं, तो वो बताएंगे कि आपको ग्राउंड रोलिंग पे और ग्राउंड की कंडीशन अच्छी करने के लिए क्या खर्चा आता है। तो आप लोग तो जैसे EPCA की हिस्ट्री थी, जब हम लोगों ने शुरू में क्रिकेट खेली है, अभी भी वो EPCA के रूल में है, रूल बुक पे अंदर अभी भी आज भी मौजूद है कि जो क्लब क्रिकेट खेलेगी वो अपना ग्राउंड खुद लेके आएगी, ग्राउंड लेके आएगी, उसको मेंटेन करेगी। अब तो माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया आपके लिए कि टीमें आती हैं फ्राइडे को, किट पहन के आती हैं, क्रिकेट खेल के घर चली जाती हैं, अंपायर भी अवेलेबल है, ग्राउंड भी, फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और पानी की बोतलें ग्राउंड के अंदर फेंक के घर को चले गए। अब तो एक चीज़ की आपने केयर करनी है कि अभी वहाँ पे टिप्पू भी नहीं है, आपको सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, टायर भी नहीं है, और अभी जो अप्रैल मई में लास्ट जो बारिश हुई थी, उसमें आपके ग्राउंड नंबर 18, 19, 6, 7, 8, 10 ये तो बिल्कुल ही अनप्लेएबल है। आप लोग खेले होंगे, टायर तो बाद में गए ना, तो ग्राउंडों की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसके लिए ज़ाहिर है अब आप तो यही कहेंगे कि हम तो पैसे दे रहे हैं, जाए EPCA वहाँ पे काम करे। आपसे EPCA आपको चार्ज करती है वो, क्योंकि एक पूरी जो क्लबों की पैसे इकट्ठे आते हैं, उसमें पहले हमें सपोर्ट भी थी, इंटेलिजेंट की भी, बाहर की काफ़ी सपोर्ट हो जाती थी वहाँ से, तो वो मैनेज हो जाता, मैनेज कर लेते थे हम लोग। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने, काफ़ी टीमों ने पिछले 2 फ्राइडे से 2 वीक से प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। किसी ने ग्राउंड का देखा कि हमारी ग्राउंड की क्या कंडीशन है, या हमने उस पर क्या करना है? आपने शेख साहब माशाल्लाह इतना जो काम किया है, क्योंकि अभी जो हमारी ग्राउंडें हैं उसमें से तकरीबन 8 से 9 ग्राउंड हैं जिनके ऊपर हमें पूरा उनकी लेवलिंग करनी है, मट्टी डालनी है।
तो अगर आप अच्छे अंपायर देंगे, जैसे से आप कोई सीनियर क्रिकेटर हैं उनसे कि उनके साथ रिक्वेस्ट करें आए तो आके अंपायरिंग करें, इससे हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। अगर हम एक फैमिली हैं तो भी हमारे जो हैं जो दो मेन इशू हैं हमारे, एक क्रिकेट ग्राउंड, हमारे ग्राउंड को अच्छा करना है, दूसरा हमने अपनी अंपायरिंग के लेवल को अच्छा करना है। उसमें अगर आप अच्छे अंपायर देंगे तो अच्छी क्रिकेट होगी। तो जैसे मैंने कहा शायद उसमें शायद वो निकाल दीजिएगा जो हमारे एडिटर बैठे हुए हैं कि मंडी का, जिस तरह आप अपने प्लेयरों को अप्रोच करते हैं, उनके लिए उनको ऑफर्स लगाते हैं, इसी तरह कुछ अंपायर भी If you have any questions regarding coaching, Saurabh bhai is here to help us. He is here to develop us. कुछ भी हेल्प चाहिए, we have the best guy for the job. तो वो राइट हमारे साथ बैठे हुए हैं सौरभ भाई। उसके साथ रिजवान कयूम भी हैं और हमारे और भी बहुत सारे सीनियर कोचिंग मेंबर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ यूथ को इन्वॉल्व करें, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनकी ये सर्विसेज को इससे फ़ायदा उठाएं, तो हम सबको फ़ायदा होगा। आगे चलते हुए डेवलपमेंट एंड फंड रेजिंग कमेटी, वील डिस्कस अबाउट दैट लेटर। मगर नेक्स्ट जो है वो मेन है, वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग है। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी इवेंट्स होते हैं ऑल ईयर राउंड, एंड माशाल्लाह से जैसे नाइट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, सो वी हैव चेंज सम प्रोसीजर। जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड पे होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वन ऑफ द बेस्ट गाय फॉर द जॉब आमिर भाई को लेके आए इसके लिए। तो वी हैव इन्वॉल्व हिम एंड हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी एक अनाउंसमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह रिगार्डिंग द नेशनल डे। तो वो नेशनल डे का जो मैच हैं वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं ऑन संडे नाइट। तो उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया है वो ये जो लीग चैम्पियंस हैं ऑफ ऑल डिविजन्स विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर T10 मैचेस। ठीक है, वो संडे नाइट को होगा, वो अभी साथ आपको फर्दर ब्रीफ करेंगे। मगर इसमें इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत इधर से ही पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट वी हैव टू गेट इन्वॉल्व एंड डू समथिंग बिग। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम साद अहमद ख़ान है और मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई 62 टीम्स को, जिनमें से पुराने नए सारे लोग हैं, उनको एक दफ़ा फिर से EPCA के नए सीज़न के लिए वेलकम करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ जो कमेटी आपके सामने यहाँ पे बैठी हुई है, इट्स ए वॉलंटरी जॉब। वी टेक टाइम आउट ऑफ आवर लाइफ टू सर्व यू, ठीक है, एंड बिलीव मी इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर आपको ये लगता है कि फ्राइडे को जाके आप मैच खेलते हैं, अंपायर आपका आ जाता है, मैच जीतना हारना, उसके पीछे टूर्नामेंट्स की, ये फ़रज साहब की, इम्तियाज़ साहब की, जो भी कमेटी, शाहिद साहब की, जो भी बैठे हैं, मुदस्सिर की, वी वर्क ऑल वीक लॉन्ग, ठीक है, टू गेट वन सक्सेसफुल वीकेंड फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। अगर आप हमें अप्रेस करेंगे, वी आर थैंकफुल टू यू, लेकिन अगर आप हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, क्योंकि क्रिटिसिज्म वहीं से आती है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द T20 चैम्पियनशिप। स्पॉन्सरशिप, टूर्नामेंट नेम, टाइटल्स क्या होगा, कैसे होगा, इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। देन वी विल मूव इनटू द मेन लीग। उसके बाद हमारा प्लान है कि विल कंडक्ट दीज 2 टूर्नामेंट्स बाय द एंड ऑफ फरवरी, क्योंकि इस साल से रमज़ान जो है वो 1 मार्च से एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह एक और टूर्नामेंट होगा नाइट में, जैसा कि इशा के बाद कंडक्ट करवाया गया था लास्ट ईयर। इट विल बी कंडक्टेड इन KFMC, कानू, तमीमी, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनेगी, जो चीज़ जो अवेलेबल होगा। इट विल स्टार्ट इन रमज़ान, इट विल कंक्लूड इन रमज़ान, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड एक और T20 का टूर्नामेंट होगा, डबल डोज इसलिए कि एक साल में 2 बार किया जाएगा। हाँ, तो जो कुछ भी टूर्नामेंट की गाइडलाइंस होंगी, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस, हमारी तरफ से कुछ सजेशंस हैं, दे आर कमिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। आपकी तरफ से जो कुछ है आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो ये अगस्त और सितंबर 2025 है, उसमें EPCA का 100 बॉल एंड सुपर 6 बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड टीम्स करवाया जाएगा। एंड देन वी विल कंक्लूड द करंट सीजन इन एंड ऑफ नवंबर 2025। प्लीज़ नोट द डेट्स, हम कब स्टार्ट कर रहे हैं और हम कब एंड कर रहे हैं। पहली बार EPCA की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि सीजन विल बी ऑफ 15 मंथ्स रादर देन 12। सो प्लान योर टीम्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, दे आर कमिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो जस्ट प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ यू। आज जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट,
बाद में आपके मैं ये नहीं कर सका, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये दीज थिंग्स विल नॉट बी वैल्यूड लेटर। अभी आपने सिर्फ 2 फॉर्म्स फिल किए, एक में आपने क्लब रजिस्टर किया है, एक में आपने अपने प्लेयर्स को रजिस्टर किया है। आपको जब सीज़न स्टार्ट होगा, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, आपको एक और गूगल का फॉर्म दिया जाएगा, उसमें हम आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे। द प्लेयर हु यू आर रजिस्टरिंग, इज़ ही ऑलरेडी ऑन क्रिक क्लब्स और ही इज़ अ न्यू प्लेयर ऑन अकामा। अगर वो क्रिक क्लब्स में ऑलरेडी है, जस्ट गिव अस हिज आईडी। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वी विल आस्क फॉर यू, ठीक है। इफ़ ही इज़ अ न्यू प्लेयर जो क्रिक क्लब में एग्जिस्ट नहीं करता, आप सिर्फ उसका अकामा नंबर, उसकी कॉपी अटैच कर दीजिए। वी विल एंटर हिम इन क्रिक क्लब्स और आपके स्क्वाड में ऐड कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन, द लास्ट डेट एंड द लास्ट टाइम टू प्रोवाइड इज़ वेंसडे 11:59 PM। इसके बाद वो फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और इट विल रीओपन अगेन ऑन संडे मॉर्निंग। तो जो आपके मैचेस फ्राइडे को होंगे, उसके लिए आपको अपनी टीम को एटलीस्ट फ्राइडे नाइट तक प्लान करना पड़ेगा, सॉरी वेंसडे नाइट तक प्लान करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? देखें, वंस अगेन इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। अब आपने देखा होगा कि हमने पिछले साल से एक स्टेप लिया था लाइव स्कोरिंग का। कितने लोग हैं, मतलब इवन उस मीटिंग में हमारे अपने कमेटी के मेंबर्स थे हु वर अपोजिंग दैट आइडिया, और उस टाइम पे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, गिव मी जस्ट 1 टूर्नामेंट। और आज कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लाइव स्कोरिंग हमेशा के लिए कंटिन्यू, कितने लोग हैं जो उसके खिलाफ चलते? एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जी, ठीक है। तो अगर आपका प्लेयर प्री रजिस्टर्ड होगा तो आप खुद ब खुद लाइव स्कोरिंग कर सकते हैं। उसी वक्त ना आपको कोई फॉर्म फिल करना है, ना कुछ करना है। मैच खत्म, मैच सबमिट किया, स्टैट्स अपडेट हो गए। कितने लोगों को याद होगा कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी, उसमें लोगों का यही प्रॉब्लम होता था कि मेरी विकेट्स एडेड नहीं है, मेरे रन्स नहीं है। और अब आप देख लें, पिछले 2 टूर्नामेंट्स की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, इट वाज कंक्लूडेड ऑन ग्राउंड, और हमारे पास एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सारे आए और ईपीसीओ को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आज से नहीं, शुरू से आप करते आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सब टीमों का, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में फिर वो यही बात है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट ईपीसीओ इंशाल्लाह मैं और मेरी कमेटी आपको अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करेंगे।